Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. What we have learned in last lecture? Miasm in dreams. Miasm in? Dreams. नहीं, उसके आगे गए थे ना हम. यस सर, आगे गए थे. हेरिंग्स लॉ भी हुआ था ना हमारा. माइजम इन हेरिंग्स लॉ हुआ था ना. हाँ सर. यस सर. एजिंग Picking up rubric for ड्रीम्स के बाद एजिंग हुआ, एजिंग के बाद हेरिंग्स लॉ हुआ. एजिंग भी हो गया सर. Now the 28th chapter, picking up rubrics for similimum with the help of miasm, right? अब मेन पार्ट है कि अकॉर्डिंग टू माइजम किस तरह से रूब्रिक हमें पिकअप करना है, किस तरह से. फर्स्ट हमारा वर्क ये होता है कि जो पेशेंट लैंग्वेज होती है वो हमें रेपर्टरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे फिर पेशेंट की जो भी सिम्टम्स है, जो भी पेशेंट बता रहा है, जितना भी पेशेंट ने हमें एक्सप्लेन किया है, उस सबको अंडरस्टैंड करके उसका एक मीनिंग हमें बना के रेपर्टरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके हमें रूब्रिक सिलेक्ट करना है, और वो भी रूब्रिक अकॉर्डिंग टू माइजम हमें लेना है. सो पिकिंग अप rubrics for similimum with the help of miasm, it is chapter 28, 202 page. So we know what the whole organism exists, what the whole organism exists on depends. Without depends, no organism will survive. Survival of self is done by nutrition and oxygen. So first depends है, जो मेन बेसिक डिपेंस है वो है सर्वाइवल फॉर सेल्फ. और सर्वाइवल फॉर सेल्फ के लिए जो मेन वर्क होता है दैट इज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजनेशन. यस. तो अगर ये प्रॉपर है, न्यूट्रिशन प्रॉपर है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर है, तो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर होगा. बॉडी फंक्शनिंग है तो बॉडी हेल्दी होगी और फर्स्ट डिफेंस वहां पे परफॉर्म होगा. यस. सो सर्वाइवल फॉर सेल्फ. Then survival of species is done by function of reproduction. Yes, the second function, so second defense of our body is survival of species. जो हमने प्रोडक्ट दिए हैं, जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो हमने हमारा खुद का मैन्युफैक्चर किया है इन द फॉर्म ऑफ क्लोन, उसका सर्वाइवल, उसे सेफ्टी बनाना. यस. सो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज डन बाय फंक्शन ऑफ reproduction. Survival against any foreign hostile force is by function of immunity. और हर तरीके के, क्योंकि बॉडी के ऊपर, हमारे ऊपर 24 आवर्स किसी ना किसी बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिजम्स का अटैक शुरू हो रहता है. अगर ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं है तो कोई भी केमिकल, एटमॉस्फेरिक, जो भी हमारे बॉडी के ऊपर अटैक होते रहता है 24 आवर्स, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना. और इम्यूनिटी से ही उससे हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे. और उस ये जो फंक्शन है थर्ड, दैट इज द डिफेंस थ्रू इम्यूनिटी, is the third defense. Yes. So there are certain constitutions who depend by first function. The inhibition of nutrition that causes inflammation is what we attribute to Sora. The constitution which have genetic tendency to depend in such a way are soric constitutions. Yes. So the first depends, that is the nutrition, inhibition, oxygenation, is Sora. That is the physiology. That is the function of our normal health or normal body. So same thing heights, same thing holds good for psychotic constitution and syphilitic constitution, which show tendency to depend by constructive defense and destructive defense respectively.
So first depends, that is the physiological depends. Second depends, that is the constructive depends, and the third depends, that is the destructive depends. So this means that the first type of psoric constitutions are expert in using physiological depends. The psychotic are expert in using constructive depends, and the syphilitics are expert in using destructive depends. Let us consider a man on the street who is attacked by a group of 4 to 5 people's bad elements. This man, is expert in using a gun like a Westerner, and today he is not possessing it. If you want the help, this man, what should we give him? बहुत ही नाइस एग्जाम्पल, एक्सलेंट एग्जाम्पल सर ने यहाँ दिया है कि किस तरह से डिपेंस होता है, किस तरह से डिपेंस करना पड़ता है. यस, तो जो हेल्पर है उसे उसकी जगह पे हमें रखो, मतलब हम सब अपने को रखो, खुद को रखो, कि जो सामने जो भी हमें कॉरल दिख रहा है या फिर जो भी अटेम्प्ट होते हुए दिख रहा है कि एक पर्सन है और उस पर किसी 4 to 5 पीपल्स ने अटैक कर दिया, और जिस पे अटैक किया उस पर्सन इज एक्सपर्ट इन यूजिंग द राइफल, और आज उसके पास राइफल नहीं है, फिर हमें उसकी हेल्प किस तरह से करनी है? अगर हम उसे प्रोटेक्शन के लिए, उसे डिफेंस करने के लिए एक लकड़े की लाठी देते हैं, तो क्या वो उससे डिफेंस कर पाएगा खुद का? नहीं. या फिर कुछ स्वॉर्ड देते हैं या फिर नाइफ देते हैं, तो खुद का डिफेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन ओनली यूजिंग द राइफल. जब राइफल मिलेगी तभी वो खुद का अच्छी तरह से परफेक्टली डिफेंस कर पाएगा. सो इफ वी, अब ये एग्जांपल हम खुद के ऊपर लीजिए कि जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम उसे, ये जो राइफल यहाँ पे दी है, दैट इज द मेडिसिन, और जो परफेक्ट के लिए बताया है, अगर हम उसे परफेक्ट मेडिसिन, परफेक्ट सिमिलिमम नहीं देते, तो वहां पे कैसे डिफेंस होगा, कैसे उसका क्योर होगा, किस तरह से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी अगर वो मेडिसिन परफेक्ट नहीं है, सिमिलिमम नहीं है, तो इम्यूनिटी स्टिमुलेट ही नहीं होगी, और इम्यूनिटी स्टिमुलेट नहीं हुई तो बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, यस, बॉडी को क्योर नहीं करेगी. सो बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल सर ने यहाँ लिया. इफ वी वांट द हेल्प this man, what should we give him? A stick or a knife? No, not at all. What he requires to be given is a weapon which he is expert with, and which he can use better. Give him a gun and he will defend himself. Similarly, of another man in the same place is expert in using sword. There is no sense in giving him a gun that he can't use. Provide him with a sword and he will defend himself. और सेम इसे इस तरह से यूज करो कि अगर इसी पर्सन को हमने 4 शस्त्र दी दे कि ये स्वॉर्ड में एक्सपर्ट है, तलवार चलाने में, तलवारबाजी में एक्सपर्ट है, और हम उसे तलवार दे ही नहीं रहे, या फिर तलवार भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ काठी भी दे रहे, नाइफ भी दे रहे, पत्थर भी दे रहे, स्टोन भी दे रहे कि भाई करो प्रोटेक्ट. एट ए टाइम 4 चीजें उसके हाथ में थमा दिए तो वो प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, डिफेंस कर ही नहीं पाएगा. कैसे चलाएगा वो 4 शस्त्र? तो ये एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग पेटेंट यूज करते हैं, जो लोग 4 5 5 6 6 10 10 मेडिसिन का फार्मूला बना के देते हैं. तो वो जो पेशेंट को हेल्प करना चाहते हैं, उसको क्योर करना चाहते हैं, तो एट ए टाइम 4 मेडिसिन अगर देंगे तो किस तरह से वो इम्यूनिटी वहां पे स्टिमुलेट होगी और इम्यूनिटी वहां पे ग्रोन अप होगी? हो ही नहीं सकता, है ना. वो और वीक हो जाएगी. वो पर्सन जिसके हाथ में हमने 4 चीजें थमा दी, वो और वीक हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चीज यूज करूं, किस तरह से, कौन सी चीज से डिफेंस करूं. यस, सो
So provide him with a sword and he will defend himself. So provide him one single remedy and perfect similimum, then he will be cured. So in homeopathy, we do not cure a disease. Our remedy do not cure a disease. We only stimulate the patient to cure himself. हमें तो कुछ भी नहीं करना है. हमारा काम इतना ही है कि उसे परफेक्ट जीसीएस मिलना चाहिए, परफेक्ट सिमिलिमम मिलना चाहिए, तब तक ही हमारा काम है. और वो अगर हम प्रॉपरली कॉन्साइंशियसली डिलीजेंटली हम हमारा वर्क करते हैं, 100% उसे परफेक्ट सिमिलिमम मिलेगा और उसकी इम्यूनिटी उसको क्योर करेगी, वो खुद अपने आप को क्योर करेगा. So we should first understand and know how this constitution is defending itself. Now for the time being, we have to imagine the long fighter we were just talking about. We have to know what a Dipensio tactics he excels in. Yes, if it is the physiological defense, he should be given only physiological defense oriented remedies. Yes, तो ये सब उसके हेल्प करने के लिए हमें जीसीएस के साथ साथ हमें किस टाइप का जीसीएस देना है, कौन सा जीसीएस देना है, कौन सा परफेक्ट सिमिलिमम देना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ये समझने के लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले प्रोसेस देखो क्या शुरू है ना, which depends is going on in his body, physiological, constructive और destructive. तो सबसे पहले हमें देखना है, अगर उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल डिफेंस चल रहा है, मतलब डिजीज ओनली इन्फ्लामेटरी है, सोरिक है, तो हमें फिजियोलॉजिकल डिफेंस से रिलेटेड ही रूब्रिक सिलेक्ट करना है. और जो उस बेस पे जो रूब्रिक्स आएंगे, उस बेस पे जो मेडिसिन आएंगी, वो मेडिसिन 100% सोरिक होगी और वो सोरिक सिम्टम्स को क्योर करेगी. यस, so if he knows to excel in destructive defense, we have to provide him destructive defense remedies, that is the syphilitic remedy. So similarly in psychotic remedies can stimulate him to cure. If it is psychosyphilitic defense, we have to give him psychosyphilitic defense, this similia similibus curantur. In the first case of coma mentioned in the first chapter, the patient was tending to fight with accumulative and destructive defense, that is psychosyphilitic. The cerebral encephalopathy was leading to coma, psychosis, and destruction of senses and consciousness is syphilitic. I made a mistake to give him a cake instead of gun. So soric remedy was given to psychosyphilitic depending constitution. Then what cure will be this patient? क्योर हो ही नहीं सकता अगर हम पार्शियल सिमिलिमम भी देते हैं, परफेक्ट सिमिलिमम नहीं देते हैं, तो क्योर किस तरह से होगा, कैसे होगा? तो जो है उस कंडीशन को देख के ही परफेक्ट सिमिलिमम निकालना चाहिए. अगर वहाँ साइकोटिक डिफेंस चल रहा है, वहाँ सिपिलिटिक डिफेंस चल रहा है, तो हमें साइकोटिक डिफेंस की ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दैट इज प्योर साइकोटिक. सिपिलिटिक है तो प्योर सिपिलिटिक, सोरिक है तो प्योर सोरिक, या फिर कंबाइंड माइजम, दैट इज सोरोसाइकोटिक और सोरोसिपिलिटिक, साइकोसिपिलिटिक. यस, तो इस तरह से कंबाइंड माइजम की है, तो कंबाइंड माइजम में हमें मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिफेंस कौन सा है, उस डिस्ट्रक्टिव डिफेंस के रूब्रिक्स लेके मेडिसिन निकालनी पड़ेंगी, ताकि वो रेमेडी साइकोसिपिलिटिक हो, सोरोसिपिलिटिक हो. यस, सो हाउ दे टू सिलेक्ट द राइट सिमिलिमम अकॉर्डिंग टू द डिजीज is very simple. The patient depends on mental plane, physical plane, general plane, etc. That is the mental makeup, physical makeup, general makeup, the disease makeup, all arising from the genetic code, which should speak the same language of defense or miasm. Yes, मतलब ये सब मेकअप्स देखने के बाद हमें miasmatic makeup भी देखना जरूरी है. If the disease is in syphilitic, we cannot take a soric mental or
psychotic mental for deciding the symptom. We want only syphilitic mental. Yes. So सर ने यहाँ मेकअप्स किए हैं, मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप एंड डिजीज मेकअप are here are few rubrics which should be useful. तो यहाँ पे सोरिक rubrics दिए हैं, साइकोटिक rubrics दिए हैं एंड सिफिलिटिक rubrics दिए हैं. तो बहुत से rubrics है यहाँ पे. इन सब rubrics का मीनिंग भी आप लोगों को पता है. अगर आप लोग ये पढ़ते हैं और अगर इसमें कोई rubric ऐसा है कि जैसे इस rubric को सर कैसे यूज करना, कौन से कंडीशन में यूज करना, इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या लेना, तो मैं फटाफट फास्ट रीड करता हूं. अगर आपको किसी रूब्रिक के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज आपका डिजिटल हैंड राइज कीजिए, मैं वहां रुक जाऊंगा, फिर आपको चांस दूंगा. ओके. सो एंजाइटी, एपेक्शोनेट, दीज आर द सोरिक रूब्रिक्स. आई एम रीडिंग सोरिक रूब्रिक्स. एंजाइटी, एपेक्शोनेट, ardent, activity, desire, awkward, apprehension, bashful, benevolence, capriciousness, carefulness, carefulness, cares, worries full of, cheerfulness, cautious, carried, desire to be, charitable, complaining, confusion, courageous, deeds, desire to perform good, useful. Yes. ये बहुत अच्छा रूब्रिक्स है. डीड्स डिजायर टू परफॉर्म. बहुत से लोगों को मतलब ये रूब्रिक कब लेना है, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि किसी के भी यहाँ जाना, किसी भी फंक्शन में जाना और आगे आगे करना, है ना. आप रंजों में कर देता हूँ, है ना. आगे आगे करने की जो जिनको आदत होती है कि जिसे हम और एक बात भी बोलते हैं, नाक खुपसना हर चीज में, है ना. सो दिस इज डीड्स डिजायर टू परफॉर्म गुड और यूजफुल. ऐसे बहुत से लोग होते. आपने देखा होगा कोई कुछ भी फंक्शन रहा तो ऐसे एक दो पर्सन होते हैं जो आगे 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 कोई भी काम करने का रहा तो वो सबसे आगे वो रहते हैं, है ना. फिर वो हैप्पी वाला मोमेंट हो या फिर सैडफुल मोमेंट्स हो, है ना. जहाँ एकादे कहीं डेथ हो गई तो एकादा पर्सन ऐसा होता है कि जो सबसे आगे होता है, सब कुछ करते रहता है अपने खुद के इंटरेस्ट से. यस, दिस इज its desire to perform good or bad. So useful, discomfort, expressive, extroverted, honest, hurry, industrious, inquisitive. ऐसी फंक्शन में आपको ऐसा भी एक आधा पर्सन दिखेगा कि जो इसके बारे में पूछ, उसके बारे में पूछ, इसके बारे में बता, कुछ उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बता, फैमिली के बारे में बता. दिस इज इंक्विजिटिवनेस. इरिटेबल, इंटेलेक्चुअल, इंट्रोस्पेक्शन. यस, इंट्रोस्पेक्शन. बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को दोष देने के बजाय, दूसरों को कुछ बोलने के बजाय सबसे पहले खुद पे वो ब्लेम लेंगे, खुद के लिए सोचेंगे. मतलब जैसा कि भाई मैं सब उनको कुछ बोलने के पहले मैं खुद सोचता हूं कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा तो कोई रॉन्ग हुआ नहीं. फिर वो पूरा इंसिडेंस पूरा अपने आंखों के सामने लाएंगे कि अपन कहीं गलत हुए क्या, पहले देख लो, नहीं तो लोग अपने को बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. देन माइल्डनेस, पर्टिनेसिटी, रिलीजियसनेस. पर्टिनेसिटी भी एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है. जो लोग बहुत ही हैक्कड़ स्वभाव के होते हैं, मेरा ही सही, मैं ही सही, ऐसा ही करो, मैं जो बोलता हूं वही सुनो. दिस इज पर्टिनेसिटी. और परफेक्ट होता है उनका जो भी. ये किस बेस पे होता है कि उनको पता है कि आई एम राइट, है ना. मतलब ये सही है और यही सही है. दिस इज पर्टिनेसिटी. वो उसी तरह से करेंगे, उसी तरह से चलेंगे. फिर सारी दुनिया एक तरफ जाए और उनको अगर लगा कि मेरा राइट है तो एक तरफ ही चलेंगे. सो दिस इज पर्टिनेसिटी. देन रिलीजियसनेस, सैडनेस, सेंसिटिव, सेंटिमेंटल, सोबर, sociability, sympathetic, thoughts and timidity. So these are the SORIC rubrics. ना तो बहुत कम चांस मिलता है इन रूब्रिक्स को यूज करने के लिए, क्योंकि मोस्टली सोरिक एक्यूट डिजीज होते हैं और एक्यूट में हम अकॉर्डिंग टू चार्ट रेमेडीज देते हैं. और जो क्रॉनिक सोरिक डिजीज आते हैं जैसे कि सोरोसाइकोटिक है, सोरोसिफिलिटिक है, तो ये दीज आर क्रॉनिक सोरिक डिजीज.
बट ऐसे केसेस में हमें मोस्टली सेंसिटिविटी लेनी होती है, और ऐसा अगर कोई डिस्पोजिशन मिलता है तो हमें उसे ऐड करना होता है, तो लेकिन वो चांस बहुत रेयरली मिलता है। यस, सो इसीलिए ये रूब्रिक समझ लो, लेकिन जहां चांस मिला वहां पे इसे यूज करो। देन साइकोटिक रूब्रिक्स। साइकोटिक रूब्रिक्स, अब जैसे साइकोटिक है वैसे वो रूब्रिक भी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। सो एब्सॉर्ब, बहुत रेयरली ये यूज आप सिम्टम आपको यूज करने को मिलेगा। एब्सॉर्ब, अगर आपके सामने पेशेंट आए और आपने देखा कि उसके साथ में जो भी अटेंडेंस है वो सब सिम्टम बता रहा है और ये किसी तरह गहरी सोच में है, दिस इज एब्सॉर्ब। एडमिरेशन, डिजायर, एफेक्शनिस्ट, सॉरी एफेक्शनिस्ट नहीं, एफेक्टेशन। एफेक्टेशन बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है, एफेक्टेशन। या आप सिफिलिटिक में भी कभी कभी यूज कर सकते हैं एफेक्टेशन। यस, तो एफेक्टेशन कैसा कि ये तो ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड है कि आप किस तरह से पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए आपको एक तो आपकी कैबिन पूरी ग्लास की होनी चाहिए, ताकि आपको बाहर का दिखे, वेटिंग ग्रुप में कितने पेशेंट बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, किस तरह से उनके एक्सप्रेशन है, किस तरह से वो आजू बाजू वाले पेशेंट से बात कर रहे हैं, है ना, क्या बात कर रहे हैं, ये सब डिपेंड होता है ऑब्जर्वेशन पे। तो उसमें से ये रूब्रिक निकलेगा एफेक्टेशन। तो बहुत से लोगों को आदत होती है कि बाहर आएंगे सीधा चलते हुए, कोई सिम्टम नहीं, कुछ हाँ हूँ नहीं, आके बैठ गए, और जब उनका टर्न आता है कैबिन में आने का तो लंगड़ते हुए आएंगे, हु अरे बाप रे करते हुए आएंगे। दिस इज एफेक्टेशन। यस, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन पे। अगर आपका सेटअप इस तरह से नहीं है, आपके क्लिनिक में, हॉस्पिटल में सीसीटीवी नहीं है, या फिर आपकी कैबिन ग्लास की नहीं है, आपको बाहर का कुछ दिखता नहीं है, तो आपका स्टाफ फिर उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, उतना ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए कि आपके स्टाफ ने आपको बाहर जो एक्टिविटीज हो रही, बाहर जो भी होती, छोटी मोटी जो भी चीजें हो रही है, आपको बतानी चाहिए कि सर ये पेशेंट बाहर इस तरह से बैठ रहा हुआ था, इस तरह से आजू बाजू वाले पेशेंट से बात कर रहा था और एकदम अच्छा था, और अंदर आते बराबर इसका पेन बढ़ गया, इसके कंप्लेंट बढ़ गए, ये लंगड़ते हुए आ रहा, ये कैसा पेशेंट है? तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर स्टाफ। आपका जो भी बाहर रिप्रेजेंटेटिव है उसमें ये सब बातें बतानी चाहिए। तो इस तरह से आपको आपके स्टाफ को, जो भी आपके रिसेप्शनिस्ट है, जो भी आपके यहाँ कंपाउंडर्स है, उनको आपको इस तरह से ट्रेन भी करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से ट्रेन करते हैं तो आपका केस टेकिंग का 25% पार्ट कुल से कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो केस टेकिंग के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हमारे हमारा स्टाफ, हमारे अंदर का जो भी सराउंडिंग है वो किस तरह से हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब बातें मायने रखती है केस टेकिंग के लिए। ओके, सो देन अमेटिवनेस, एमोरस, ऑडेसिटी, एंगर। ऑडेसिटी मोस्टली आपको चिल्ड्रेंस में रूब्रिक देखने को मिलेगा, यंगस्टर्स में रूब्रिक मिलेगा। देन एब्सेंट माइंडेडनेस, एंटिक्स प्लेस, अवेयरिस, beseeching। यस, बहुत से पेशेंट होते हैं जो बेसिचिंग करते हैं, मतलब आपसे बहुत बार बोलेंगे कि डॉक्टर साहब प्लीज इतना देखो ना, इतना पहले कर दो ना, ना मैं बहुत देर से आई हूँ, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, है ना, प्लीज प्लीज मुझे ले लो ना, प्लीज मुझे जाने दो ना, डॉक्टर साहब प्लीज मेरा इतना दुरुस्त कर दो, आप मेरा इतना बैठा दो। दिस इज बेसिचिंग। सो होस्टर आते बराबर आपको चढ़ाना शुरू कर देंगे, बोरोइंग ऑफ एवरीवन। देन बॉयंसी, बॉयंसी भी बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये साइकोसिग्नेटिक रूब्रिक है। देन बिजीनेस एप्टीट्यूड फॉर चाइल्डिश। बॉयंसी का एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ कि बॉयंसी ये रूब्रिक आप ओनली माइंड लेवल पे ही नहीं ले सकते, तो फिजिकल लेवल पे भी ये रूब्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कि
एक बार मैंने पेशेंट देखा था सर के यहाँ, सर ने बॉयंसी पेशेंट ये रूब्रिक कैसे यूज किया, किस तरह से सिलेक्ट किया। तो एक पेशेंट था जो पेशेंट ने कंप्लेंट किया कि मैं लैट्रिन जाता हूँ, लैट्रिन जाने के बाद जब मैं फ्लश करता हूँ तो मेरी स्टूल पानी में जाती नहीं है, वो तरंगते रहती है ऊपर। कितना भी फ्लश करो, 10 बार भी फ्लश किया ना तो वो अंदर जाके वापस बाहर आती है, वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है, वो जाती ही नहीं है, फिर ऊपर से पानी डालना पड़ता तभी वो जाएंगी। सर ने वहां रूब्रिक किया बॉयज। सो मतलब आप ये कितना बढ़िया रूब्रिक है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। बॉयंसी का मतलब होना तरंगना। यस। सो हल्के मेंटल लेवल पे सर हेलो मेंटल सर लेवल पे, मेंटल लेवल मेंटल लेवल पे किस तरह से इसे यूज करेंगे। यस। तो मेंटल लेवल पे इसे यूज करना है कि ऐसा पर्सन कि उसे कहीं पे भी छोड़ दो वो बराबर निकल जाता है उस सिचुएशन से। मतलब इसके लिए एक कहावत आपको बोलता कि गन्ने के खेत में जाना और गन्ने का पत्ता भी नहीं लगने देना। ये सुनिए ना कहावत। नहीं मैंने सुना नहीं था आज सुन रहा हूँ सर तो ये वाला नहीं सुना जो गन्ने का खेत होता है ना, आपने देखा होगा कि गन्ने के झाड़ जो होते हैं वो एक में ऐसे ये हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो, एकदम पास पास होते हैं जगह नहीं होता है जी एक दूसरे से अटैच होते एक में ऐसे घुस जाते सर. घुस जाते हैं, और क्या बोलेंगे उसको, मराठी में बोलता है कि एवढे ते मिक्स होतात एकामेकात की त्याच्यातून मनुष्य जाऊ शकत नहीं, उसमें तो इंसान जा ही नहीं सकता। आप कितना भी हैं। हटाओ होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, उसमें से जा ही नहीं सकता। एक में आप म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, नॉइस बहुत हो रहा है प्लीज। तो उस खेत में, उस फील्ड में से आप जा ही नहीं सकते गन्ने के। तो उसके लिए ये रूब्रिक जो ऐसे इसमें से पास होता है और आंख को गन्ने का पत्ता भी नहीं लगने देता, और उसके पत्ते इतने शार्प होते हैं कि स्किन कट जाती है ना। तो इसका मतलब ये होता है बॉयंसी का कि जैसे कि एक एक बार ये रूब्रिक मैंने यूज किया था कि एक पर्सन था जो जिसके नियर अबाउट 6-7 लफड़े थे, 6-7 लेडीज के साथ उसके अफेयर चल रहे थे, मैरिड पर्सन था, लेकिन इसका उसको थोड़ा सा भी पता नहीं। इतने अच्छी तरह से वो हैंडल करता था ये सब बातें, बराबर वाइफ को वाइफ का टाइम देना, ये गर्लफ्रेंड फ्रेंड को उसका उतना बराबर टाइम, उसको बराबर हैंडल करना, बराबर चीजें घुमाता था। तो दिस इज बॉयंसी। कभी पकड़े नहीं गया, कभी कुछ नहीं, और इतने मतलब काफी लंबे समय से उसका ये सब चल रहा था, लेकिन सब अच्छी तरह से मैनेज हैंडल, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, किसी की भी कंप्लेंट नहीं कि भाई इसका, और किसी को भी डाउट भी नहीं कि इसका कुछ है। सो दिस इज बॉयंसी। इजीली निकल जाना हर चीज से, सेफ रहना। सो दिस इज बॉयंसी। बहुत यस। सो आगे चलते हैं। देन business aptitude for child is cowardice, conceals himself, contended, coquettish, corrupt, venal, counting, in charitable with expectation of recompense, did feels as if he could do great. Yes. हमेशा ऐसा पेशेंट जिसे हमेशा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे काम करता हूँ। Delicacy, brittle, discontented, dullness, sluggishness, desires, longing for, desire more than she needs, dress best at his, duplicity, eloquent, embarrassment, yes, escape desire to, exclusive to, extravagance, egotism, embarrassment, facade, fear, fame, yes,
फेइंग भी बहुत अच्छा रुब्रिक है। ढोंग करना, जैसे कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि बाहर एकदम कंफर्टेबली बैठे थे और अंदर आते ही उनका ये शुरू हुआ, वहां पे भी आप फेइंग भी रुब्रिक्स ले सकते हैं। यस। देन फ्लैटरी डिजायर, पोपिस एलिगेंट डैंडी, फ्लैटर लोगों को चढ़ाने वाला फ्लैटर। देन फाइनेंस एप्टीट्यूड फॉर फाइनरी लग्जरी क्लॉथिंग वॉन्ट्स, फास्टिडियस, इनिशिएटिव लैक ऑफ, बहुत अच्छा रूब्रिक है। देन कंसोलेशन, इनकंसोलेबल, तो कंसोल होता ही नहीं कितना भी आप बोलो, सी इनकंसोलेबल। गैम्बल, प्लूटोनी, ग्रैंडियर डिजायर, ग्रोनिंग मोनिंग, हाइट डिजायर टू, हेट्रेट, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी आल्सो फेइंग के जैसा ही रूब्रिक है, हाइपोक्रेसी। देन 40, होम सिकनेस, आइडियाज फिक्स, इमिटेशन, किसी का भी नक्कल उतारना, इमिटेशन, अनुकरण करना, पैरों पे पैर डाल के चलना, हम बोलते हैं ना किसी के पैर पे पैर डाल के चलो, दिस इज इमिटेशन। इम्पोर्टेंस फील्स हिज पॉम्पस, indiscretion, misplacedness, jesting, liar, libertinism, yes, स्वैरवर्तन मनुष्य, libertinism। लिबर्टिनिज्म के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बताइए। अभी प्रेजेंट दिनों में जो भी आपने लिबर्टिनिज्म के लिए देखा। यस। मुझे जैसा लगे मैं वैसा करूं, मेरा मन जो कहे मैं वैसा करूं, दिस इज लिबर्टिनिज्म। किसी की सुनना नहीं, किसी को इम्पोर्टेंस देना नहीं, लिबर्टिनिज्म। दिस इज राखी सावंत। लोकेसिटी, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, मेडल्सम, medicine desire to swallow large doses of, miser, mourning, mirth, mischievous, muttering, plans making many, reverie, feasting, secretive, suspicious, mistrustfulness, ungrateful, slowness, squanders, selfishness, sadness, talk indisposed or talk vivacious, timidity, usurer, vanity, theorizing, and versusness. So these are all psychotic rubrics. तो इन रुब्रिक्स में से सोरिक एंड साइकोटिक, अगर किसी रुब्रिक के बारे में आपको पूछना है कि किस तरह से इसका मीनिंग क्या है, यूज कैसे करना, तो आप पूछ सकते हैं। ओके। यस डॉक्टर राउत। सर वो कैंसिल हिमसेल्फ या उसका मीनिंग सर उसको कब लेना है? कैंसिल, कैंसिल्स हिमसेल्फ, कौन सा रुब्रिक? कॉन्सिल्स, कॉन्सिल्स हिमसेल्फ, CONCELS, कंसिल्स हिमसेल्फ, कॉन्सिल्स कंसिल्स हिमसेल्फ, हाँ हिमसेल्फ हाँ। मतलब खुद के बारे में छुपाना, बताना नहीं, कोई ऐसी चीज जो छुपा के रखना खुद के लिए, खुद के बारे में, दैट इज कंसील्स हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल सर, हाइडिंग भी उसके लिए ले सकते हैं हम। सिक्रेटिव भी। ओके, नाउ द सिप्लेटिक रूब्रिक्स। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, देखो एब्सॉर्ब हमने देखा है, देन एब्सेंट माइंडेडनेस हमने देखा, नाउ द एब्स्ट्रैक्शन माइंड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड मतलब ऐसा कि वहां पे कुछ बचता ही नहीं, जीरो, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। जीरो में चले जाना, जैसे
बोलते हैं ना, जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो माइंड को जीरो में लेके जाओ, फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे लाओ। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। इन लोगों का आजू बाजू में क्या शुरू है क्या नहीं कुछ पता नहीं होता है, और जब हम आवाज देंगे तो फिर ये जाग जाएंगे, अरे हाँ क्या, like this. So this is abstraction of mind. Anguish, anorexia nervosa, yes. Answers imaginary questions to पूछा क्या और बता रहे क्या, मतलब उनके माइंड में कुछ तभी वो इमेजिन कर रहे हैं और आपने पूछा कुछ और वो उसका जो उनके माइंड में इमेजिन कर रहे हैं उसका जवाब दे देते हैं। So this is answers imaginary questions, then answer incoherently, answers irrelevantly, ask nothing for, ask nothing for, कभी किसी भी चीज के लिए कोई डिमांड नहीं, कभी कुछ मांगना नहीं, ask nothing for, aversion, everything to, herself to, and family members, this is aversion, split, business averse to, catalepsy, yes. तो what is the meaning of catalepsy? मैं पूछता हूं आप लोगों को, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटालेप्सी? कब रूब्रिक ए यूज करेंगे आप? क्या मीनिंग होता है कैटालेप्सी का? Paralyzed like. ए कैटालेप्सी का आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, बहुत से फिल्म में बताते हैं, है ना, कि जो लोग फिल्म में एक्चुअली सब इमेजिनरी होता है, नाटक होता है ना, ड्रामा होता है, तो कैटालेप्सी में इस तरह से होता है। कोई बताना चाहता है, बताओ, अगर किसी को पता है तो बताइए फास्ट। नहीं, ओके। सो कैटालेप्सी में जिस पोजीशन में आप पैर या लेग्स या फिर हैंड को रखेंगे वो उसी पोजीशन में रहेगा, है ना। तो फिल्म में बताते हैं ना कि हैंड ऊपर कर दिया और ऐसे ही हैंड है, फिर वापस नीचे करो अपने हाथ से, लेग्स को ऊपर कर दिया वो ऊपर ही है, फिर उसको अपने हाथ से नीचे कर लो। दिस इज कैटालेप्सी कंडीशन, यस। तो रूब्रिक में कैसे यूज करेंगे सर उसका? ऐसी कंडीशन है तो। और माइंड कैसे लेंगे उसका? कि फिजिकल लेवल पे ही लेना है सिर्फ? अगर आपको इस तरह से कुछ मिलता है कि कंडीशन ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन एंड लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मोशन, लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मोशन, ये जो हुआ एक कंडीशन में आना, फिर वो जैसे कि अपने पार्किंसन के पेशेंट का होता है कि उनका हैंड या फिर उनके बॉडी में बहुत स्टिफनेस आता है, अगर ऐसा हैंड हो गया तो आप उसको अगर नजीक करना है तो आपको कितना जोर लगा कि उसको ऐसे नजीक करना पड़ता है। तो दिस इज कैटालेप्सी टाइप कंडीशन। तो इसी तरह से इनवॉल्यूंटरीली इनवॉल्यूंटरी पेशेंट का अगर पेशेंट ने पैर स्ट्रेट ही रहेगा, यस। So loss of voluntary motion in which the limbs hold any position they are placed in. Yes. ये देखने गलती करके टीएम हो गया मेरे को, यही देखने गलती कर। Yes, thank you. Casting of people against her will. Yes, ये पेशेंट को लगता है ऐसा कि सब लोग मेरे मन के खिलाफ, मेरे खिलाफ कुछ तभी प्लान बना रहे, मुझे अलग अकेला डालने की कोशिश कर रहे। कास्टिंग ऑफ पीपल, या फिर मुझे अकेला डाल दिया, मैं अकेला हूं, मुझे अकेला निकाल दिया, लाइक दिस। कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट हर। क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी, इनह्यूमैनिटी, कर्सिंग, ब्लास्फेमी, प्रोफेनिटी, यस।
तो देखो, क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी, इनह्यूमैनिटी एक ही रूब्रिक है, लेकिन तीनों की मीनिंग, तीनों के भी मीनिंग में माइनर माइनर डिफरेंस है। क्रुएल्टी मतलब, क्रुएल्टी मतलब मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो। क्रूरता। क्रुएल्टी मतलब क्रूरता नहीं, ब्रुटैलिटी मतलब क्रूरता, क्रुएल्टी मतलब निर्दयपना, निर्दयी, ब्रुटैलिटी मतलब क्रूरता, निर्दयी, क्रूर कृत्य, और इनह्यूमैनिटी मतलब अमानुष कृत्य। वैसे कर्सिंग, ब्लास्फेमी एंड प्रोफेनिटी तीनों की मीनिंग बोलो। कर्सिंग, कृषि शाप देवे, शिवा, कर्सिंग शाप देनी, वेरी गुड। ब्रुटैलिटी, सॉरी, कर्सिंग, ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा। यस, ईश्वर निंदा, है ना, भगवान के प्रति निंदा करने वाला, दिस इज ब्लास्फेमी। एंड प्रोफेनिटी, धर्म निंदा। जिसमें धर्म निंदा होती है, धर्म के बारे में निंदा करना। डेथ डिजायर, डेथ थॉट्स ऑफ, डिस्पेयर, देन डिस्ट्रक्टिवनेस, डिटैच, डेवलपमेंट, मेंटल अरेस्टेड, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी मतलब whimsical, विक्षिप्तपना, इनोआइटेडियम, कंटाड़वाना। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे इतना बोर हो जाते हैं, वो करने की इच्छा नहीं बचती। स्ट्रेंज, रिलेशन ब्रेकअप करना, स्ट्रेंज। यूफोरिया, यूफोरिया ये वो कंडीशन है जहां पेशेंट हंसते हंसते पागल हो जाता है, रोते रोते हंसना शुरू कर देता है। फिल्मों में देखते हैं ना, हमें कोई न्यूज सुन लिया और रो रहे बाद में हंसना शुरू कर दिया ना, हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया। दिस इज एफोरिया। एक्सिलरेशन, fanaticism, then fancies, exaltation of, far away, as if with apathy and indifference to future, yes, far away, कभी कोई नहीं सोचते किसी चीज के, नहीं फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के, कभी नहीं, कुछ नहीं। दिस इज apathy and indifference to future. Apathy and indolence to the future. Apathy and indolence to the future. Then fire wants to set things or house on. Syphilis. ऐसा लगता है जला देना, है ना, ऐसा लगता है सब कुछ जला दो। This is fire wants to set things or house on. Then forsex, children his own. Forsex relations. Godless want of religious feeling. तो ये रूब्रिक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो जिसके पास कोई मॉरल्स नहीं, कभी किसी के बारे में, गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता नहीं। दिस इज गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग। होमोसेक्सुअलिटी, लव फॉर ओन सेक्स, हिस्टेरिया, imbecility, indifference, apathy, insanity, madness, killed desire to be, and lamenting, bemoaning, wailing. lamenting बहुत दुखदायक पल, that is lamenting. then bemoaning मतलब किसी चीज के बारे में इतना शोक करना, that is bemoaning. और wailing, that is गला निकाल के रोना, एक सुर बना के रोना, wailing. Laughing, hysterical, laughing involuntary, laughing immoderately, lewdness, obscene, malicious, spiteful, and vindictive. Yes. Vindictive, that is किसी का बदला लेने की भावना रखना।
mania, madness, marriage aversion to. Yes, marriage aversion to is also syphilitic. Masochism. Masochism, that means खुद को ही इंज्योर करना और उससे उसे बेटर फील होना, खुद को पेन देना, उससे उसे बेटर फील होना. बहुत से लोग निडल्स प्रिक करते हैं, बहुत से लोग पिंचिंग करते हैं, बाल निकालते हैं, है ना, एक एक बाल खींचते रहते हैं. दिस इज मैसोचिज्म. हेलो सर. यस. सर स्किन के केस में बहुत लोगों का जो स्किन का प्रॉब्लम होता है वो बोलते हैं इचिंग करते हैं, ब्लड आ जाता है स्क्रैच करते करते, लेकिन अच्छा लगता है, नहीं, भभाता है वो मैसोचिज्म नहीं है. दैट इज एम्बलरेशन बाय स्क्रैचिंग. जी जी. मैसोचिज्म ये एबनॉर्मल थिंग है, और itching gives betterness. It is disease symptom. It is common in skin disease. तो इस तरह से सर मैसोचिज्म में कैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि खुद को मारना, फिर उनको बहुत अच्छा लगता है. तो कैसे, जैसे सर हाथ से मारना, दीवार पे पीटना, तो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द हर वॉल है और म्यूटिलेटिंग बॉडी पार्ट है, तो इसको हम डिफरेंस कैसे करेंगे? हम मैसोचिज्म पकड़े कि वो दूसरा तीनों में कैसे समझ पाएंगे? ये चीज, जैसे कि कोई पेशेंट ऐसे दीवार को सिर पटकता है, मारता है, चीजें फेंकता है, तो ये मैसोचिज्म नहीं हुआ. वो एक आधी बार किया तो वो मैसोचिज्म नहीं हुआ, है ना, वो वायलेंटनेस हुआ, एंगर वायलेंट हुआ. उसके पीछे हमें ये भी रीजन देखना है कि ये क्यों किया इसने. डिटेल में जाएंगे, पता चला कि कुछ ऐसी चीज हुई, उसके बाद इसको गुस्सा है, फिर उसने ऐसा किया, तो वो मैसोचिज्म नहीं हुआ. मैसोचिज्म ये कंटिन्यूस उसके इसमें रहेगा, हैबिट में, कि कभी भी ऐसा ये बैठता है तो फिर साउंड नहीं आ रहा सर, साउंड नहीं आ रहा करेगा तो इसको बहुत अच्छा लगता है. साउंड बंद हो गया. यस. हेलो. हाँ, आवाज नहीं आ रहा है सर. आवाज माइक शुरू. ओके सर, आवाज आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज क्लियर तो है. बीच में जब आप मैसोचिज्म के बारे में बताना शुरू किए तो आप 30 सेकंड के लिए गायब हुआ, फिर आ गया. हाँ, वो आपका नेटवर्क गायब. जी सर. तो फिर से बताइए. का ये मीनिंग है सर. एक पेशेंट था, तो खुद के बाल नोच रहा था, बच्चा नहीं, 16-17 साल का लड़का. वो खुद के बाल खुद से निकाल के पूरा टकला कर दिया था पर्टिकुलर एरियाज में. फिर वहां पे बाल आते थे, फिर और वैसे ही चालू लगता था, तो वो टकला कर लेता था. तो उसके लिए ले सकते सर? इसमें आपको एक चीज कंफर्म करनी, एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि उससे उस चीज से बेटर फील होता है. एक नहीं सर, बेटर के लिए, क्योंकि बहुत से जो जैसे कि मिसएंथ्रोपिस्ट चाइल्ड होते हैं ना, कभी किसी में मिक्स नहीं होते, जिनमें अकेलापन, अलोननेस होता है, जो सैडफुल होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो मोस्टली ऐसा करते हैं बाल खींचना. सर ये ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं शायद इसको. जी, ऐसा कुछ. यस. और ये ओसीडी होता है ना. ओसीडी में भी होता है, लेकिन जो मैसोचिज्म है ना, ये पर्टिकुलरली एक पेशेंट को बहुत आनंद देने वाली चीज होती है, कि हार्म करो तो आनंद मिलता है. सर इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? तो फिर अभी ये जो कंप्लेंट बताई मैंने, कूलिंग हेयर. यस, तो बरोबर है. ट्राइकोलिमेनिया. ट्राइकोटिलोमेनिया. अच्छा, ओके, थैंक. Now, misanthropy, moral affection, antisocial, criminal disposition, perversion, and want of moral feeling. Naked wants to be. Naked wants to be का मतलब only ये नहीं कि physically naked want to be. It is also mental मीनिंग भी है उसका. मेंटल में भी आप ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं कि जब कोई पर्सन उसके सब सीक्रेट्स आपके सामने खोल देता है, ओपन कर देता है, दैट इज आल्सो नेकेड वांट टू बी. निम्फोमेनिया, रेज फ्यूरी, रिपल्सिव मूड. यस, अभी रिपल्सिव मूड ये देखो. सर जो दूसरे का सीक्रेट रिवील करता है
दूसरे का सीक्रेट रिवील करता है वो, दूसरे का सीक्रेट। जैसे कुछ सीक्रेट चीज है, अगर कहा गया कि भाई इसको बोलना नहीं, बताना नहीं, लेकिन उसका स्वभाव है वो बोल देगा जरूर। हाँ हाँ, दूसरे के बारे में निंदा करना। नहीं, निंदा नहीं है। अगर कोई सीक्रेट चीज है दोनों के बीच का, अगर सामने वाले की गलती है, वो बोले कि इसको बताना नहीं, सीक्रेट रखना, लेकिन उसका ऐसा स्वभाव हो कि किसी का भी सीक्रेट न रखता हो, ओपन कर देता हो, कहीं बात हो तो वहां कह दे। हाँ, बोलो बोलो, सब लोग बोलो, इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? ओपन द सीक्रेट्स। जी जी। तो क्या नेकेड ही लेंगे, कुछ और होगा इसके लिए? नहीं, नेकेड खुद के लिए, जी तो खुद का बताता है तो नेकेड, नहीं तो जी जी, दूसरे का बोल देता है, दूसरे का हाँ, सीक्रेट पर्सनल चीज, जिसको बहुत कसम खिलाया हो, वो रखा हो कि नहीं बोलना नहीं है, लेकिन बोल दे। यस। तो उसके लिए देखो रूब्रिक ओपन द सीक्रेट्स है क्या, रिवील सीक्रेट रिवेल है सीक्रेट्स, क्या? और है, दो चार रूब्रिक्स है। इनक्विजिटिव, और एक है, बताओ बताओ। ट्रूथ टेल द प्लेन, हाँ, ट्रूथ टेल द प्लेन्स, ऐसा कुछ वो नहीं रहेगा ना? ट्रूथ टेल द प्लेन्स, यस, ये भी है। लेकिन वो IQ उसका कम रहता है, वो और सीधा साधा और दो चार रूब्रिक्स है। यस, तो बोलिए। सीधा साधा के लिए नाइव रहेगा। नेव ने, हाँ नेव ना, वही। जी, इसको नाइव बोल सकते, नेव। नाइव नहीं, नाइव नहीं। नहीं, वो सीधा साधा बोल रहे थे, उसके लिए नाइव बोल सकते हैं, सीधा हाँ, साधा के लिए। सीधा साधा जो होता है, भोला वाला, उसके साथ आप मजाक भी करो, उसके समझ में नहीं आता, दिस इज नाइव पर्सन। स्लैंडर, स्लैंडर होगा सर। स्लैंडर तो वो होगा ना, मतलब उसके बारे, सामने वाले का धज्जी उड़ाना, मतलब गलत प्रचार करना, अगर वो उसकी एक गलती 10 गलती बताना, झूठा प्रचार हाँ, तो प्रसार दूसरे करना। का सीक्रेट रिलीज करना वही हुआ ना। उससे रिलेटेड रूब्रिक अपन डिस्कस कर रहे हैं ना। क्योंकि मेरे पास एक दो लोग हैं लेकिन मैं रूबली आज अच्छा हुआ, आज ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। हम्म। देन रिपल्सिव मूड। अब रिपल्सिव मूड देखो, इतना बढ़िया रूब्रिक है ये आप माइंड लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक केस बताता हूं। डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर अश्विनी, येस सर. तो पेशंट होता ना, तो लहान मुलगा त्या दिवसा कुठला सर? डिस्गस्ट फिलिंग वाला, वॉमिटिंग, कंटिन्युअस नॉशिया, वॉमिटिंग, हा मुलगा तो. त्याचं रजिस्टर काढून घेऊन ये। हा येस सर. सो एक पेशेंट आया, एक 5-6 दिन पहले, एक छोटा 7 साल का बच्चा, उसको उस पेशेंट को इतने वोमिटिंग, वो बच्चों को इतने वोमिटिंग कि उनके एक 8 दिन में नियर अबाउट 1 लाख तक खर्चा हो गया हॉस्पिटलाइजेशन में, और उसकी वोमिटिंग स्टॉप ही नहीं हो रही। वो मतलब कंटिन्यू पेशेंट कंटिन्यू चालू, कंटिन्यूस, मतलब वो एक ऐसे 1 मिनट भी कैबिन में सही तरह से ढंग से बैठा नहीं, और पूरा कोलैप्स हो जाता था। मतलब उसके बॉडी में उसने 1 सिप वाटर भी लिया तो वो तुरंत बाहर आता था, तुरंत। वो एक मूवमेंट भी स्टमक में रहता नहीं था, जैसा गया वैसा रिवर्स होता था। बताओ ऐसे पेशेंट में क्या लेना? तुम्ही घेतली होती केस? तो जो भी खाया, जो भी अंदर गया, तुरंत बाहर रिवर्स होता था, तुरंत। और पेशेंट बिल्कुल, मतलब बैठे बैठे ऐसा बिल्कुल कोलैप्स हो जाता था। फिर उसे पानी मारो, आ जाता था।
बताइए इस पेशेंट के लिए क्या लेना? डिस्गस्ट बोला था। शॉर्ट हिस्ट्री उसकी ऐसी है कि मतलब उसे इतने पेशेंट को कंटिन्यू आईवी ड्रिप्स दिए, एलोपैथिक हॉस्पिटल में उसे इंजेक्टेबल दिए कंटिन्यूस, लेकिन उसकी वोमिटिंग रुकी ही नहीं। और उसकी शॉर्ट हिस्ट्री ऐसी थी कि वो बच्चा मैथ में बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही शार्प है। और उसने जो भी जितने भी मैथ्स के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं वो उसने दिए और उसमें वो फर्स्ट आया। तो उसके लिए उसने कुछ क्लासेस लगाए, तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि तू इतना फर्स्ट आया, तूने इतना खर्चा किया, ये एग्जाम के इतने पैसे भरे, वो एग्जाम के इतने भरे पैसे भरे, और तेको मिला क्या? एक सर्टिफिकेट। तो उससे वो चीज उसको बहुत, उस चीज मतलब वो इतना सेंसिटिव था, वो चीज उसको मन को इतनी लग गई कि ये सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं ना। स्कूल में गए तो बच्चे मेरे को देख के हंसते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये पागल है, ये इतने एक सर्टिफिकेट कागज के टुकड़े के लिए उसने इतने पैसे खर्च किए, इतनी पढ़ाई करता, इतने इतने एग्जाम दे रहा है, ये फर्स्ट आया उसमें, तो क्या मिला इसको? कुछ भी तो नहीं मिला, कोई गिफ्ट नहीं मिला, ओनली एक सर्टिफिकेट दे दिया। तो दिस इज डिस्गस्टिंग। इससे उसे इतनी डिस्गस्ट फीलिंग आई, उसके माइंड में इतनी वो बात चली गई, मतलब वो उस चीज के लिए कितना सेंसिटिव इमोशनल उसका माइंड होगा कि उस बात की वजह से कि अब मुझे जिंदा ही नहीं रहना है ना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ खाना ही नहीं है। डिजाइन क्या रूब्रिक लेंगे बताइए? क्या रूब्रिक लेंगे? क्या मेडिसिन होगी? CT abdomen reports rectum and large bowel loops are loaded with fecal matter and are not dilated. Mild hepatomegaly. Blood 10.8 हो गया, CRP 21.53। yes. और जो पॉजिटिव फैक्टर्स एलोपैथ्स ने बताए वो ये थे कि एक 8-15 दिन पहले वो बच्चा एक कोई मैरिज फंक्शन में गया और उसने उसमें 8-10 बूंदी के लड्डू खा लिए। बूंदी के लड्डू उसको बहुत पसंद थे, तो उसने वो बूंदी के लड्डू खाए। उसके बाद उसको ये कंप्लेंट स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने वो पॉजिटिव फैक्टर बताया जिससे उसे सीवियर गैस्ट्राइटिस बताया और उस हिसाब से उसे ट्रीट करने लग गए, लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं हुआ। आखिर में उसे नागपुर रेफर किया गया। तो नागपुर जाने के पहले वो मेरे पास आया और उसे एक सिंगल डोज दिया और नेक्स्ट डे मैंने बुलाया। मैंने बोला उनको कि इसे एडमिट करते हैं, आज के दिन रुकाओ। तो बोले हमारा यही बाजू में रिलेटिव्स रहते हैं, हम उनके यहाँ रुकते, अगर आप हमें कभी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जाओ, कल सुबह उसके लेके आओ। तो 24 आवर्स के बाद मैंने उनको बुलाया। एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद जब वो बच्चा है तो मैंने खुद उसे पहचाना। इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रेश दिखला था, और डोज देने के बाद उसे नो वोमिटिंग, नो नौशिया, इतना पेट भर के 2 टाइम्स उसने खाना खाया। बहुत ही बढ़िया। बताइए मेडिसिन। मार्क हो सकती है सर। मर्क, ओके। मर्क होता था तो वो खुद के ऊपर नहीं लेता था, वो उन बच्चों से फाइटिंग करता था जिनकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम आया है ना, जिन्होंने उसको कुछ क्रॉस किया, क्रिटिसाइज किया, उनको मारता था। सर इग्निशिया
इग्निशिया यहाँ कौन सा ग्रीफ है? यहाँ तो डिस्गस्ट फीलिंग है, ग्रीफ नहीं। Thermal was hot patient, नाइट्रम और hot thirsty. नाइट्रोम्योर पेशेंट बैठता था, सुनता था, किसी ने क्रिटिसाइज किया, जाके अपने रूम में रोते बैठता था, वीपिंग। लाइकोपोडियम सर, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला। और कौन से बच्चे बताओ? पल्सेटिला। अभी हमने क्या सीखा? हमारा चैप्टर कौन सा है? rubrics, Select the rubric according to the defense. माइग्राम सिपिलिटी, Yes. तो उसके बॉडी में कौन सा डिफेंस चल रहा है? सिपिलिटी, सोरिक, सॉरी, अच्छा है, सॉरी, है ना? और वो सोरा एग्जैगरेट होके कहा जा रहा है? सिपिलिटिक में। डिस्गस्ट फीलिंग, इट इज सिपिलिटिक। सो द केस इज सोरो सिपिलिटिक। तो हमें रेमेडी कौन सी चाहिए? सोरो सिपिलिटिक, राइट? है ना? तो अब सोरो सिपिलिटिक सबसे पहले हमें क्या करना है? अब पेशेंट की लैंग्वेज, पेशेंट के सिम्टम, पेशेंट ने जो भी हिस्ट्री दिया उसको हमें कन्वर्ट करना है रेपर्टरियल लैंग्वेज में। तो क्या आप यहाँ रूब्रिक लेंगे? सबसे पहले हमें रूब्रिक के बारे में सोचना है, मेडिसिन के बारे में नहीं। तो क्या रूब्रिक लेंगे? किस तरह के रूब्रिक लेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी ये केस में से बताइए। डिजायर डेथ लेंगे सर। डिजायर डेथ लेंगे, ओके। उनका सफरेंस लेंगे। डिस्गस्ट लेंगे सर। लेकिन सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, यहाँ डिजायर डेथ नहीं आएगा। पेशेंट ने खाना पीना थोड़ी छोड़ा है। पेशेंट को तो सीवियर गैस्ट्राइटिस की वजह से रिवर्स हो रहा है सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, है ना? डेथ डिजायर कब लेंगे? जब पेशेंट ने होप ही छोड़ दिया, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना है, मैं खा के क्या करूंगा, मेरे को खाना ही नहीं है, मर जाना है। दिस इज डेथ डिजायर। डिस्गस्ट सर, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट ले सकते हैं, ओके। डिस्गस्ट फीलिंग, है ना? और एंगर सप्रेशन, नो। सेंसिटिव बच्चों टू को गुस्सा क्रिटिसिज्म, नहीं आया। एलिमेंट्स फ्रॉम कर्सिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम कर्सिंग, नो। सर एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट कहाँ हुआ उसे? वो तो उसे फर्स्ट बोल रहे आया, थे। फर्स्ट। हर एग्जाम में फर्स्ट आया, वो स्कॉलर था मैथ में। एम्बैरेसमेंट कहाँ हुआ? तुम्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहे तो मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ कहीं फंस के। उसे जो रिवार्ड मिलने चाहिए तो वो तो मिले ना उसे। लोग क्रिटिसाइज कर रहे उसे। क्रिटिसिज्म, है ना? सो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, राइट? यस। देन मैंने ये केस आपको कौन से रूब्रिक पर से बताया? रिपल्सिव मूड, रिपल्सिव मूड। ये उस स्टमक का रिपल्सिव मूड है कि जो भी उस स्टमक को टच करता है, स्टमक उसे पट से रिपल्स कर देता है, पट से फेंक देता है बाहर, है ना? सो द मूड repulsive food for, this is the main rubric. Mood repulsive food for in mental rubric. Then omitting food eating after immediately and delirium omitting with, जो वो इस कंडीशन में गया, कोलैप्स होना, है ना? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे गिर जाता था। ये नींद नहीं थी,
बिकॉज ऑफ पेट में कुछ जा ही नहीं रहा, एनर्जी कंप्लीटली लॉस. So this is delirium vomiting with omitting food, eating after immediately, mood repulsive food for, and sensitive criticism or reproaches. And the medicine was Vipera. सिंगल डोज ऑफ वाइपेरा ने पेशेंट को क्योर कर दिया एक ही दिन में. यस, सो this was excellent experience of me about Vipera. Repulsive mood जो रुब्रिक है, ये रुब्रिक. सर ये किस चार्ट पे से नहीं निकाल सकते थे क्या? कुछ चार्ट्स आप निकाल के मुझे बता देना, ग्रुप में शेयर कर देना. ओके, yes. So retarded children, schizophrenia, sensitive, want of sensitiveness, shamelessness, slender disposition, जो मैंने अभी बोला था ना, slender, that is निंदा नालस्ती करना किसी की भी. slender disposition to strange crank disposition, then social dispositions, suicidal disposition, then unfeeling, hard-hearted, violence, vehemence, washing always hands her. These are the syphilitic rubrics. So आज हमने टोटल सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक डिफेंस रूब्रिक्स हमने यहाँ आज स्टडी किए. ओके, सो कल इस पर जो सर ने यहाँ केसेस दिए उसका हम स्टडी करेंगे. ओके, टोटल खाना अगर बंद कर दिया बच्चे ने, किसी जैसे कुछ खा रहा था, अटके जैसा सेंसेशन हुआ, फिर टोटल 15 दिन तक खाना ही नहीं खाया, ये सिफिलिटिक हुआ ना? यस सर. एनोरेक्सिया नर्वोसा का बताइए सर. ये एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा बिकॉज ऑफ नर्वसनेस की वजह से भूख नहीं लगना. कोई भी कुछ तभी ऐसी बात होगी, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी की कोई बैड घटना हो गई, डेथ हो गई, तो बहुत दिन तक वो खाना नहीं खाता पेशेंट, उसी सोच में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दुख में रहता है. दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. भूख ही नहीं लगती, उस इवेंट के बाद भूख ही नहीं लग रही, उस घटना के बाद भूख ही नहीं लग रही. सर एक किल्ड डिजायर टू बी का थोड़ा सा बता दीजिए. किल डिजायर टू बी. यस सर. है ना, किल्ड की किल, किल डिजायर टू बी है एक, जो मारने की इच्छा होना, किल करने की इच्छा होना. एंड किल्ड डिजायर टू बी, मार के लेने की इच्छा होना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा तो, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एनोरेक्सिया नर्वोसा तो लेडीज में ओवरवेट या फिर इसकी वजह से ऐसा कुछ था ना? किसी भी नर्वस कंडीशन की वजह से एनोरेक्सिया होना है, लॉस ऑफ एपेटाइट होना. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. यस, ओके, थैंक यू सर. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you, sir. See you. Thank you, sir. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू सर. गुड डे सर. Good day. थैंक यू सर.